Good afternoon everyone. Welcome to the lecture of structure design. Today we will going to start a new chapter, isolated column footing. For RCC columns, normally isolated footings are provided because the design and construction of such footing is simple and economical. The isolated footing for a column may be a pad footing or a slope footing. So the footing may be axially loaded or eccentrically loaded. In this chapter we will study a axially loaded pad footing or a slope footing, right? So we are going to start this chapter. In this chapter we are going to study about the types of isolated column footing, bearing capacity of the soil, critical section of footing, check for a development length, reinforcement required for the footing, and example of isolated column footing. So basically isolated column footing have two types, pad footing and slope footing. So you can see in this figure, this figure shows RCC column and bottom footing. So this is a pad footing. We can also say this is a uniform thickness footing because all footing have a uniform thickness. And in another figure you are watching slope footing. So here you can see there is a slope in the footing, that's why this is called a slope footing. Bearing capacity of the soil. So what is the bearing capacity of the soil? So the size of the footing depends on the bearing capacity of the soil. The load on a unit area below a footing should less than a bearing capacity of the soil to prevent a settlement of a footing, right? What is the gross bearing capacity? So gross bearing capacity is a total pressure acting at a base of a footing, including a self weight of a footing, weight of a column, overburden pressure of a soil above the footing, etc. is called a gross bearing capacity. So basically what is gross bearing capacity? So gross bearing capacity एक टोटल प्रेशर है जो बेस ऑफ द कॉलम पे मतलब बेस ऑफ द फुटिंग पे लगने वाला है, ठीक है. सो द नेट प्रेशर एट द बेस ऑफ अ फुटिंग आफ्टर अ डिडक्शन ऑफ द वेट of a excavated foot soil is called safe bearing capacity of the soil. ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि safe bearing capacity of the soil किसको बोलते हैं. So you can see in this figure equation also safe bearing capacity we are say Qn, gross bearing capacity is a Q, and overburden pressure is a gamma into D. Gamma is the density of the soil and D is the depth of the footing. So there are so many different types of the soil, and the types of the soil are having a different soil bearing capacity. So we can see rocks have a 450 to 3000 kilonewton per meter square SBC. Non-cohesive soils like gravel, coarse sand, medium sand, fine sand, etc. having a 100 to 450 kilonewton per meter square safe bearing capacity. And the another type of the soil is a cohesive soil like a soft, hard and a stiff clay. This having a 50 to 450 kilonewton per meter square SBC. Now we are going to see a critical sections. So what is a critical section? Like for a isolated column footing there are three sections important. First one is the critical section for a bending moment. Second one is the critical section for a one-way shear, and third one is a critical section for a two-way shear, right? So first of all, how we can calculate a bending moment in a column? So for a maximum bending moment, critical section is taken on the face of the column, right? So this is the face of the column. If column is a rectangular,
then critical section are taken xx and in a yy direction. So you can see this is a xx direction. So higher value of the bending moment used for a design. So for calculating a critical section at xx, we have a equation WL square by 2. So what is L? So L is a distance between this column to BF, right? And W is a net pressure, upward soil pressure into BF. And this is the way we can calculate a bending moment. So equation for the bending moment will be a WL square by 2. Now we will see a critical section for a one-way shear. So for a one-way shear, critical section is taken at a distance D from the column of the face. So you can see this is the face of the column and this is the section where we have taken. So this is distance is a D distance, right? So D is the effective depth of a footing. So how we can find out this shear strength of the column, tau C. So for finding the shear strength of the column, tau C, for a percentage of the steel, we can see IS 456 2000, page number 73, table number 19. We have an equation tau V is equal to VU upon BD. So that is a nominal shear stress. And where VU क्या है उसमें? So VU है SF, shear force on a H area. मतलब कि ये जो H area है उसके ऊपर जो shear force लगता है वो. So वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? So उसका इक्वेशन है P इंटू BF. P मतलब कि उसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो, और BF वो उसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज. इफ़ डेप्थ ऑफ द फुटिंग मतलब कि कैपिटल D इज़ लेस देन 300 mm, then the design shear strength of the column is taken as a K into tau C. उसमें K क्या है? So K हम लोग IS 456 2000 में पेज नंबर 72 में से लेंगे. So if tau V is less than tau C, then हमारा जो डिज़ाइन है कॉलम की वो सेफ है. मतलब कि हमें tau V एंड tau C फाइंड आउट करना है और उसमें देखना है कि हमारी कॉलम के डिज़ाइन सेफ है कि नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है? सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर अ टू वे shear. So for a two-way shear, critical section is taken at a distance 0.5 into D from a face of the column. So you can see in this figure distance 0.5 मतलब कि D by 2 from a face of the column. यहाँ से आपको ये आपको H एरिया जो दिख रहा है वो एरिया हमारा क्या है? क्रिटिकल सेक्शन फॉर अ टू वे shear. सो उसमें D क्या रहेगा? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग फॉर अ स्लोप फुटिंग. और VU क्या है? तो shear फोर्स ऑन अ आउटसाइड एरिया है. ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के आउटसाइड एरिया मतलब कि H एरिया. सो VU अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? P इंटू H एरिया मतलब कि P जो हमारा लोड है वो और H एरिया जो टोटल एरिया में से इतना एरिया हम लोग माइनस कर देंगे. सो हमें डायरेक्टली ये H किया हुआ एरिया मिलेगा. सो वो VU होगा. उसके बाद हमें नॉमिनल shear स्ट्रेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो नॉमिनल shear स्ट्रेस का इक्वेशन है टाउ V इज इक्वल टू VU अपन B इंटू D, जिसमें B क्या है? लेंथ ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि ये, और स्मॉल d क्या है? डेप्थ ऑफ अ फुटिंग एट अ क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है, और हमें क्या देखना है? डिज़ाइन shear स्ट्रेस इन अ कॉन्क्रीट. सो उसके लिए इक्वेशन होगा टाउ C डैश इज इक्वल टू KS इंटू टाउ C. सो ये KS क्या है? सो KS की वैल्यू होगी 0.5 प्लस बीटा C. ये सारा जो इक्वेशंस है ये हम लोग एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करेंगे, और एग्जाम्पल जब करेंगे तब आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा, क्योंकि अभी मैं ये थियोरी बोलूँगी आपको ऊपर से जाएगा, बट आई नो कि एग्जाम्पल जब करेंगे तब आपको सारा समझ में आएगा कि इसको कैसे चेक करना है. इसमें भी अगेन टाउ V शुड बी लेस देन टाउ C डैश. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हमारी डिज़ाइन shear टू वे shear के अगेंस्ट सेफ है.
ठीक है। उसके बाद आएगा चेक फॉर अ डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या है वो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे के चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, चेक करना है कि हमने जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की है वो ओके है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पेज नंबर IS 456/2000 पेज नंबर 42 पे इक्वेशन दिया है LD इज इक्वल टू 5 इंटू 0.87 FY अपन टाउ 4 BD, राइट, 4 इंटू टाउ BD, ये इक्वेशन है। सो वो इक्वेशन के ऊपर से आप LD फाइंड आउट कर पाओगे। अब हमें LD जो प्रोवाइडेड है वो चेक करना है कि हमने कितना प्रोवाइडेड किया है। उसके बाद चेक करना है कि हमारा जो LD प्रोवाइडेड है वो LD रिक्वायर्ड से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो कम है तो हमारी डिज़ाइन ओके नहीं है। अब उसके बाद है रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फुटिंग। सो footing is designed as a wide beam, so thus IS requirement for the beam are also applicable to the footing. So ये जो IS requirement है वो IS 456/2000 पेज नंबर 47 पे आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया दिया है। उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट में आपको अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करना है तो FE 250.15% ऑफ द ग्रॉस एरिया होना चाहिए, और इन FE 415 स्टील इट शुड बी अ 12% ऑफ द ग्रॉस एरिया। सेकेंड चीज़ है स्पेसिंग ऑफ द बार्स। जो हम लोग बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए। सो FE 250 अगर हम लोग स्टील यूज़ कर रहे हैं तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स शुड बी ए 300 mm। अगर हम लोग FE 415 यूज़ कर रहे हैं तो 180 mm शुड बी अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार्स। एंड अगर हम लोग 500 Nm/mm² यूज़ कर रहे हैं तो 150 mm स्पेसिंग होना चाहिए। उसके बाद है कवर की रिक्वायरमेंट। सो कवर के लिए IS 456/2000 पेज नंबर 46 क्लोज नंबर 26.4.2 पे आपको मिनिमम स्टील का क्राइटेरिया मिनिमम कवर का क्राइटेरिया दिया है, वो है 50 mm। सो मिनिमम आपको 50 mm कवर प्रोवाइड करना है इन द कॉलम, डिज़ाइन ऑफ द कॉलम, राइट। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी और भी बातें करूँगी ट्रांसफ़र टू द लोड फ्रॉम अ कॉलम टू फुटिंग के बारे में, ठीक है। सो कॉलम लोड इज़ ट्रांसफ़र टू अ फुटिंग थ्रू अ बेरिंग। एक बेरिंग के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होता है। बेरिंग प्रेशर बिलो अ कॉलम शुड नॉट एक्सीड 0.45 FCK। बेरिंग प्रेशर ऑन अ फुटिंग शुड बी एक्सीड 0.45 FCK अंडर रूट A1/A2। So the value of under root A1/A2 should between a land 2. And third is concrete in a footing near the column is confirmed by a surrounding concrete. So ये जो load transfer from column to footing की theory है वो आपको IS 456/2000 पेज नंबर 65 क्लोज नंबर 34.4 पे दी है, ठीक है। आपको ये हमने अभी ये आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हमें IS 456/2000 का यूज़ करना है। उसके अंदर जो भी क्लोजेस दिए हैं रिगार्डिंग टू रेनफोर्समेंट, रिगार्डिंग टू स्पेसिंग ऑफ द बार्स, रिगार्डिंग टू कवर, सो ये सारे हमें क्लॉजेस यूज़ करने हैं इन एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने अब तक जो थियोरी बताई है वो थियोरी को हमें एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग फॉर अ कॉलम ऑफ अ साइज 250 by 750 mm कैरिंग एन axial characteristics load of a 2000 kN and reinforced with a
10 numbers of 25 dia bars in a 30 M30 grade concrete. The allowable bearing on a soil is a 220 kilonewton per meter square, and the material for the footing are a grade M20 concrete and HYSD bars of a grade 415. सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको साइज ऑफ द फुटिंग फाइंड आउट करना है. हमें साइज ऑफ द कॉलम ये एग्जांपल में दिया है और उसके ऊपर लोड कितना लग रहा है. कैरेक्टरिस्टिक्स लोड 2000 किलो न्यूटन. अब हम लोग सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग सबसे पहले अज्यूम करेंगे जो होगा 200 किलो न्यूटन के अराउंड. 10% ऑफ द कॉलम लोड, जो कॉलम लोड होता है उसके 10% जितना लोड हम लोग सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग अज्यूम करते हैं. टोटल लोड कितना हो गया 2200 किलो न्यूटन. एरिया रिक्वायर्ड फॉर द फुटिंग कितना हो गया 10 मीटर स्क्वायर. कैसे? एरिया रिक्वायर्ड फॉर द फुटिंग अगर हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल लोड डिवाइड बाय SBC होगा. SBC हमें 220 दिया है और टोटल लोड हमारा है 2200. इसीलिए हमारा 10 मीटर स्क्वायर हो गया. एज फुटिंग इज़ अ रेक्टेंगुलर इन साइज ऑफ अ फुटिंग मे बी सिलेक्टेड सच वे दैट इफेक्टिव कैंटिलीवर प्रोजेक्ट ऑन अ बोथ साइड इक्वल. ठीक है, हमें ऐसे फुटिंग की साइज़ डिसाइड करनी है कि जो कैंटिलीवर की इफेक्ट है दोनों साइड पे इफेक्ट सेम आए. डिफरेंट बिटवीन ए डायमेंशन ऑफ कॉलम कितना है. 0.75 उसका था और -0.25 तो कितना है 0.5 मीटर है. इफ़ B इज़ अ विड्थ ऑफ द फुटिंग देन हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा B इंटू B प्लस 0.5 इज इक्वल टू 10. ठीक है, अगर ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें हमें B की वैल्यू मिल जाएगी. वो कितने मिली है हमें 2.92 प्लस 0.5 क्या है कवर. हमारा D कितना हो गया 3.45. यहाँ पे हम लोग साइज़ ऑफ द फुटिंग प्रोवाइड करेंगे 2.95 बाय 3.45 मीटर. अब इसको मल्टीप्लाई करके एरिया देख लेंगे. जो एरिया 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए तो आपकी डिज़ाइन ओके है. ठीक है, ये तो हो गया आपका साइज़ ऑफ द फुटिंग का. अब सेकेंड है नेट अपवर्ड प्रेशर. ये जो हम लोगों ने फुटिंग की साइज़ डिसाइड की है उसके ऊपर अपवर्ड प्रेशर कितना लगेगा. सबसे पहले P फाइंड आउट करेंगे. तो P का इक्वेशन है फैक्टर्ड कॉलम लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ फुटिंग प्रोवाइडेड. फैक्टर्ड कॉलम लोड कितना है 2000 लोड आपको दिया है. उसको फैक्टर करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय आपका प्रोवाइडेड लोड कितना एरिया कितना है 10.17. उसको डिवाइड कर देंगे. हमें लोड कितना मिला यहाँ पे 294.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये नेट अपवर्ड प्रेशर आपको मिल गया. उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है. ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक आप जितना भी आपको मैंने सॉल्व करवाया है वो आप फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.